आज हम लोग सीखेंगे परचेज ऑर्डर किस प्रकार बनाते हैं। एक्सप्लेन करेंगे परचेज ऑर्डर क्या होता है, स्टेप क्या है, क्रिएट वाउचर परचेज ऑर्डर के स्टेप टू क्रिएट ए परचेज ऑर्डर, ट्रैक करना परचेज ऑर्डर को किस प्रकार करते हैं, प्रिंट करना परचेज ऑर्डर को, रिपोर्ट फॉर परचेज ऑर्डर। एंड जब हमने परचेज ऑर्डर कर दिया तो सामने से हमारी सप्लायर जो है वो हमको रिसिप्ट नोट देगा। हमें गुड्स रिसीव होंगे तो हम लोग रिसिप्ट नोट प्रिपेयर करेंगे। की पॉइंट अबाउट रिसिप्ट नोट इन टैली, रिजेक्ट आउट समटाइम कुछ गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट आउट करते हैं। की फीचर ऑफ रिजेक्शन आउट इन टैली प्राइम। फर्स्ट मेथड है कि कैंसिल द परचेज ऑर्डर, पूरा परचेज ऑर्डर कैंसिल करना। सेकंड है कि डिलीट परचेज ऑर्डर कंप्लीटली। थर्ड है कि हम पार्शियली ऑर्डर को क्लोज करना चाहते हैं तो किस प्रकार व्यू करेंगे रिपोर्ट में, ये देखेंगे हम टैली में। दीपक रन ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक शॉप इन हिज टाउन। हिज बिजनेस इज ग्रोइंग and he often need to buy stock from the supplier. One day he noticed that the stock of LED TV and refrigerator in his shop was getting low. Customers were asked for them, but he had only a few left. Deepak decided to place an order with his supplier. Star Electronic is named supplier. Instead of just calling, tell them what he need. His accountant suggests, Deepak bhai, let create a purchase order in Tally. A purchase order is a document we send to the supplier that clear the list, the item name, how much quantity, agreed price, supplier, and who give the order. It is like to confirm what we want to buy. Deepak agree. They open the tally and create purchase order for 10 LED TV 20,000 each, 5 refrigerators 30,000 each. They mention the supplier name Star Electronic and the expected delivery date. Purchase order क्या है? Purchase order written document that help buyer and supplier avoid confusion. It show what is the need in, what is the quantity, what is the price, when it should be delivered. In mention, Deepak sent the purchase order to the supplier. Few days later, supplier delivered the goods along with purchase invoice. When Deepak checked, he found the invoice matched the purchase order exactly. He smiled and told his accountant, "Good, the purchase order help us keep everything clear. No confusion about quantity or price." From that day, Deepak always used purchase order before buying goods. It became an important step to managing his business. स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम लोग परचेज ऑर्डर बनाएंगे। कंट्रोल F9 प्रेस करोगे वाउचर में, गेटवे टैली में वाउचर पे जाओगे तो कंट्रोल F9। इन केस आपका ये शो नहीं हो रहा है तो F10, कंट्रोल F10 प्रेस करके आप वहां से परचेज ऑर्डर को एक्टिव कर सकते हो। फिर व्हेन यू रिसीव द गुड्स तो रिसीप्ट नोट शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F9। रिजेक्ट आउट इन केस सम गुड्स आर डिस्ट्रॉय डैमेजेस तो कंट्रोल F5। परचेज ऑर्डर F9, शॉर्टकट की पेमेंट F5। परचेज ऑर्डर PO, short form name of purchase order, a document sent to supplier to request goods and services. Purchase order in Tally is non-accounting voucher use non जो भी हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं उससे हमारे अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, इसीलिए हम लोग नॉन अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। यूज टू रिकॉर्ड ऑर्डर प्लेस विद सप्लायर, इट कैन बी tracked against actual purchase invoice. Check in outstanding report. It is a non-accounting voucher in Tally. It does not affect ledger until convert
इनटू जब तक ये परचेज इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ऑन द supplier accept and deliver the goods, PO can be tracked again purchase invoice। शॉर्टकट की है परचेज ऑर्डर की Alt F9। शॉर्टकट की एक गलत लिखी हुई है, आपको मैंने पहले ही बता दी है। कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट ही है इसकी। स्टेप टू क्रिएट परचेज ऑर्डर इन टैली। परचेज ऑर्डर किस प्रकार पर करते हैं? गो टू गेटवे ऑफ टैली, वाउचर F10 other voucher, control plus F9 purchase order, select supplier ledger name and enter your order number, date, stock item, name, quantity, rate, amount to agree with supplier. Press Ctrl A to save. Suppose you place a purchase order 100 bags 500 rupees each, ABC supplier। वाउचर टाइप क्या होगा? परचेज ऑर्डर, पार्टी नेम ABC सप्लायर, ऑर्डर नंबर PO 001, डेट वो 1/4/2024, आइटम बैग, क्वांटिटी 100, रेट 500, अमाउंट 50,000। दिस इज डज नॉट इफेक्ट account yet it only record an order। How to track the purchase order in Tally? When supplier send invoice goods, you can link to the purchase order। Go to purchase voucher, select the party, Tally will show pending purchase order, link it। जो भी आपने परचेज ऑर्डर बनाया है आप कैसे उसको लिंक कर सकते हैं? परचेज वाउचर में F9 शॉर्टकट की है, प्रेस करोगे तो वहां पे पार्टी के नेम तो शो करेगा आपको कि परचेज ऑर्डर उस पार्टी के नेम पे की रिपोर्ट पे। हाउ टू सी द रिपोर्ट फॉर परचेज ऑर्डर? आउटस्टैंडिंग गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, अदरवाइज पार्टी वाइज आइटम वाज ट्रैक इट अवेलेबल। when when we order purchase order, when we give purchase order and then suppliers send goods, we will receive the goods and make receipt notes। Deepak place a purchase order with Star Electronic, whose supplier for 10 LED TV, 5 refrigerator। A few days later, the supplier delivered the good. When the goods arrived, Deepak did not immediately treat it purchase. He accountant explained, Deepak bhai, whenever we receive the goods, we should first make receipt note in Tally। This is the proof goods has been received. But this invoice is not yet entered. It helps us to keep track stock even before the purchase will come. So they create a receipt note in Tally for 10 LED TV and 5 refrigerator. Stock got update immediately, but accounting entry did not affect the purchase ledger yet because invoice is not received. After 2 days, the supplier sent purchase invoice. Now Deepak accountant link the purchase invoice with receipt note in the Tally. This way, the goods received were matched with the invoice. The purchase ledger was updated. No duplication happened. Deepak was happy. Now I am understand. First, we issue a purchase order, then we make receipt note when goods arrived or received. Finally, we pass the purchase invoice when the bill is received. Follow become first we will make purchase order what we want to buy.
place order. Receipt note, we what we have received, stock update. At last, we make purchase invoice when we have bill for accounting update. Now, what is receipt note? Receipt note is a voucher in Tally used to record receipt of goods from the supplier. It is a generally used in business that follow the GRN, Good Receipt Note system. When goods are received at the company warehouse premises, but the supplier purchase bill has not yet been received, you record a receipt note. Laterally, when the purchase invoice is received, it is linked with the receipt note. Receipt note, acknowledgement of goods and services before invoice. Key point about receipt note, voucher type receipt note, dual effect, it increase stock इन्वेंट्री. इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा स्टॉक इन्वेंट्री. इट आल्सो क्रिएट ए नोशनल परचेज अकाउंट एंट्री टेम्परेरी. ये जो एंट्री करते हैं हम लोग रिसिप्ट में टेम्परेरी होती है अनटिल द एक्चुअल परचेज इनवॉइस इज बुक. जब तक हम एक्चुअल में परचेज इनवॉइस बना नहीं देते. लिंक, व्हेन द परचेज इनवॉइस इज अराइव्ड, इट इज लिंक टू द रिसिप्ट नोट, मेक the entry complete. Use case, useful in case where goods is received before the supplier invoice, common in large business manufacturing and imports. फ्लो क्या है, परचेज ऑर्डर सबसे पहले बनाना है, उसके बाद हमें गुड्स रिसीव होगा. आफ्टर दैट वी मेक परचेज इनवॉइस. परचेज इनवॉइस इज received from supplier, it is a link with receipt note. You order 100 unit of raw material from supplier A. On 15th August, goods are received, but invoice is not yet received. Pass a receipt note, inventory increase. On 20th August, the invoice is received. The pass a purchase voucher and link it with receipt note. Accounting entry completed. After some time, we receive the goods. Some goods are destroy या scratch. Then we will cancel the order. Sometime it fully cancel, sometime it partially cancel. How to do? We will use reject out voucher. Deepak has placed purchase order with Star Electronic, 10 LED TV, 5 refrigerator. Purchase order, when confirmed, is required to send the purchase order to the supplier. Receipt note, few days later Star Electronic delivered the good. Deepak create a receipt note in Tally to record. 10 LED TV, 5 refrigerator. The stock is updated in his shop. Reject out, when Deepak's staff checked the goods, they found refrigerator were damaged, 2 refrigerators were damaged, 1 LED TV is cracked screen. So this is a damaged case. We will return to the our supplier. So Deepak was worried, but his accountant told him, "Don't worry, Deepak bhai. In Tally, we can use reject out voucher to return defective, unwanted goods to the supplier." They create reject out entry in Tally. 1 LED TV, 2 refrigerator. Mm, This update stock automatically reduce the goods lying in this shop. जैसे ही हम लोग रिटर्न रिजेक्ट आउट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमारे स्टॉक भी कम करेगा. अब परचेज इनवॉइस क्या, फाइनली स्टार इनवॉइस सेंड द परचेज इनवॉइस ओनली फॉर द करेक्ट गुड्स.
9 LED TV, 3 refrigerator. Deepak link the invoice with receipt note after. अब ये परचेज ऑर्डर के साथ रिसिप्ट ऑर्डर लिंक होता है तभी हमें परचेज हेल्प मिलती है। आफ्टर एक्सक्लूडिंग इसमें से रिजेक्ट आउट आइटम को निकाल देते हैं। दीपक स्माइल एंड सेड नाउ इट इज क्लियर फर्स्ट वी ऑर्डर देन वी रिसीप्ट देन वी रिजेक्ट डैमेज आइटम एंड फाइनली वी कंफर्म द परचेज। सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनाओगे, रिसिप्ट करोगे उस गुड्स को एंड रिजेक्ट्स गुड गुड डैमेजेस होंगे, अनवांटेड होंगे या एक्स्ट्रा गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। आफ्टर दैट वी मेक परचेज इनवॉइस and bill enter or accept the good after we payment. What is reject out? रिजेक्ट आउट एक वाउचर है टैली में जिसको यूज करते हैं रिटर्न द गुड्स that were either received but not yet invoice link with receipt note. Reject after purchase due to damage, mismatch, quality issue. This is the reason to reject after the purchase. It reduces the stock quantity in your inventory. It does not affect account directly unless linked with purchase and receipt transaction. Reject out. Return the goods to supplier, reduce the stock. की फीचर है रिजेक्ट आउट के, हम लोग यूज करते हैं रिजेक्ट आउट। इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि डिक्रीज होता है हमारा स्टॉक फ्रॉम द गोडाउन या वेयरहाउस। इफ लिंक रिसिप्ट नोट टू कैंसल और reduce the entry. If link later purchase invoice adjust sub supplier account. Use case return good to supplier because quantity defective, wrong supply, excessive quantity and damages. You order 100 unit of supplier A, you receive 100 order 10 August and recorded a receipt note. On the checking, you find 20 unit of defective. Pass the rejection out of 100 to reject 20 unit. Stock reduce back in 80 unit. Later, when invoice come, you link purchase invoice with receipt note 100 unit and reject out 20 unit. Purchase effectively purchase will record only for 80 units. Difference between receipt note and reject out. Receipt note is increase the stock and reject out to reduce the company stock. Receipt note is used when actually receive the good. Reject out is used to damaging unwanted या excess quantity to cancel the good, return the goods. Entry for goods sent back to the supplier due to rejection. In Teleprime, purchase order is non-accounting voucher. It does not affect books until convert into purchase. If you want to cancel a purchase order, there are two depending. फर्स्ट है केस द परचेज ऑर्डर कैंसिल करना है हमें तो गेटवे ऑफ दिल्ली वाउचर में जाना है ऑल्ट F9 फाइंड द परचेज ऑर्डर यू वांट टू कैंसिल यूज ऑल्ट C वाउचर नंबर ऑन द ऑर्डर ओपन प्रेस ऑल्ट X कैंसिल ये पूरा का पूरा वाउचर कैंसिल हो जाएगा द ऑर्डर विल बी रिमेनिंग इन रिकॉर्ड बट मार्क एज ए ये ऑर्डर तो रहेगा और कैंसिल आपको दिखेगा स्टॉक एंड अकाउंट रिमेनिंग अनइफेक्टेड इससे हमारे अकाउंट्स में कोई इफेक्ट। सेकंड मेथड है कि डिलीट कर दे परचेज ऑर्डर रिमूव कंप्लीटली ओपन द परचेज ऑर्डर वाउचर ऑल्ट D the purchase order will be permanently delete from the record cannot recover unless re-enter। थर्ड मेथड है कि हम लोग क्या पार्सली गुड्स को एक्सेप्ट कर लें और पार्सली रिजेक्ट कर लें। इफ यू डोंट वांट कैंसल डिलीट
but just close the order. Say goods would not be received. Open the purchase order. In the order detail, order completed. Yes, this will close the order. It won't appear in pending order report. Usefully when supplier did not supply but you don't want to cancel his history. All text is used to cancel the purchase order. All D is permanently removed from the Tally software. Order close without affecting his history. Perfect. You want to know the step. Close a purchase order partially or full in Tally. This is useful when supplier does not supply the pending quantity you want to stop showing in outstanding report. Step to close purchase order. ओपन करना है परचेज ऑर्डर गेटवे टैली वाउचर वाउचर पे जाना है सिलेक्ट करना है ऑल्ट F5 यहाँ पे ऑल्ट G गो टू सर्च वाउचर नंबर डेट टू ओपन ऑर्डर करना है इन द परचेज ऑर्डर वाउचर लुक एट ऑर्डर डिटेल सेक्शन आइटम डिटेल और आफ्टर दैट कंट्रोल A करके सेव कर लेना है देन आइटम ऑर्डर विल नाउ ट्रीट द क्लोज effect in the report pending order report will not showing closed portion only open activate quantity remaining pending help in accurate order pending tracking. This is your assignment. You give order 100 unit receive 70 units supplier cannot send balance 30 unit in purchase order yes 30 unit. Now report will show 17 units completely zero pending. आज हम लोग परचेज ऑर्डर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमने कंपनी ओपन कर लिया अपनी, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद हम लोग जाएंगे वाउचर में। हमने अब तक सीख लिया है लेजर कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, और ये गोदाम मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका कैसे यूज करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं वाउचर में। वाउचर में आपने अपने राइट हैंड साइड पे आना है। इस साइड पे आप देखोगे परचेज ऑर्डर। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, F10 प्रेस करोगे। यहां से आपने शो इन एक्टिवेट पे क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है, शो इन एक्टिवेट में। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पे तो आपको फुल लिस्ट आपको डिस्प्ले होगी। ये आपको फुल लिस्ट डिस्प्ले हो रही है परचेज ऑर्डर, यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। अब यहाँ से आपने परचेज ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मेरे केस में अभी क्या है, ये डिसेबल है। मेरे केस में अभी एक्टिवेट, जब फर्स्ट टाइम आप एक्टिवेट नहीं करोगे तो इस तरीके के आपको डिस्प्ले करेगा। अब परचेज ऑर्डर पे शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F9 एंटर प्रेस करोगे तो ये आपसे पूछेगा क्या यू नीड टू एक्टिवेट परचेज ऑर्डर वाउचर नाउ एक्टिवेट। यस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपको लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे क्या दिखेगा, परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको हम ये मान के चलते हैं, हम लोग अपने सप्लायर का नाम यहां से क्रिएट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे राइट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके सप्लायर के नेम दिखेंगे। जैसे राम एंड, मैं ले लेता हूं एग्जांपल के लिए राम एंड कंपनी। कंट्रोल एंटर करोगे तो आपको ये लेजर यहां से डिस्प्ले होगा। फिर से पार्टी नेम के अंदर कंट्रोल एंटर करोगे तो आपको ये प्रॉपर दिखेगा। मम्मी को बोल फोन आ रहा है। उसके बाद एंटर किया, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट। वाउ,
अब यहां से हमने परचेज का बनाना है तो परचेज सिलेक्ट करना आपने। आइटम सपोज करें अब हम नए आइटम बना रहे हैं, ये हमारे पुराने थे, तो यहां से मुझे क्या है नए बनाने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं टीवी का सोनी टीवी। सोनी टीवी अंडर किस में लेना है, यहां से कोई ग्रुप नहीं बनाया तो हम यहां से ग्रुप बना लेंगे। ऑल्ट सी करोगे, टीवी, टीवी हमारा प्राइमरी रहेगा। कंट्रोल ए करके दोबारा से ऑल्ट सी करोगे, यहां से अब हम क्या करेंगे ब्रांड वाइज सोनी टीवी। यहां पे आपने टीवी के अंदर रखना है और क्वांटिटी आपको ये मैंने पहले ही क्लास में बता दिया। अब कैटेगरी हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे मान के चलिए 32 इंच टीवी है, 32 इंच टीवी। कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। उसके बाद यूनिट नोज होती है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अब इसको देखने के लिए कंट्रोल एंटर करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि किस प्रकार हमने क्रिएट किया हुआ है। यहां से कंट्रोल ए पे प्रेस करूंगा। अब यहां पे आप ये भी डाल सकते हो कि कौन सा मॉडल है सोनी का, जैसे सोनी ये आपने मॉडल डाल लिया, जो भी XYZ जो भी मॉडल का नेम होता है, मैं अभी ये एग्जांपल के लिए डाल रहा हूं। आपके पास जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो, हमारे पास कुछ भी स्टॉक नहीं है, हमने क्या किया सिंपली एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया जिसके अंदर टीवी के अंदर सोनी टीवी बनाया ब्रांड जो, और उसमें कैटेगरी 32 इंच टीवी लिया। कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लोगे स्क्रीन को। अब ये आपसे पूछ रहा है आइटम एलोकेशन। 1 फरवरी हम 1 अप्रैल को बना रहे हैं, कितनी क्वांटिटी 10 क्वांटिटी और 20,000 एंटर करोगे तो आपका ये 2 लाख का प्राइस हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे रेफ्रिजरेटर के लिए भी क्रिएट करेंगे। 5 रेफ्रिजरेटर हमने क्या है ऑर्डर करने, ऑल्ट सी करोगे यहां से। अब हम लोग डायनामिक बनाना सीख रहे हैं इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर 295 लीटर एंटर करोगे। अब हमारे पास ग्रुप यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी क्या है रेफ्रिजरेटर हम लोगों ने बनाना है, तो यहाँ से एक मैं रेफ्रिजरेटर प्राइमरी के अंदर रखोगे। अब फिर से वापस जाओगे ऑल्ट सी करोगे, कौन से ब्रांड का है सैमसंग ब्रांड का रेफ्रिजरेटर है मेरे पास। यहां से रेफ्रिजरेटर को लिंक कर लोगे। यस क्वांटिटी शुड बी एडेड। कैटेगरी क्या है, हम कैटेगरी जो बनाएंगे वो लीटर पे बनाएंगे। ये होगी आपकी 295 क्रिएट करोगे, ऑल्ट सी 295 लीटर कंट्रोल एंटर करोगे। अब यहां से ये यूनिट पूछ रहा है तो नंबर्स में आएगा। नोस ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे, कंट्रोल एंटर करोगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएगी कि आपने ये किस प्रकार।
कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे हम लोग। अब ड्यू ऑन 1 अप्रैल से ही होगा। अब हमने इसके कितने ऑर्डर किए हुए? 5 रेफ्रिजरेटर। किस रेट पे? 30,000, 1,50,000, 1,50,000। अब आपने ये स्क्रीन देख रहे हो, ये हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं जो 3,50,000 की है। यहां से एंटर करके सेव कर लोगे और ये आपके अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अभी हमने कुछ खरीदा नहीं है तो आपके उसमें भी ऑर्डर गिवन टू सप्लायर, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब आप देखोगे कि आपके ऑर्डर में अभी कोई हमने कुछ नहीं खरीदा है स्टॉक वगैरह। तो यहाँ पे आप समरी में देखोगे मोबाइल के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एंटर करोगे, ये हमारी पिछली क्लास की है। अब हमने रिपोर्ट देखनी है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। कहां से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑर्डर है? तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाओगे, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आप देख रहे हैं ये परचेज ऑर्डर अभी कौन सा पेंडिंग है, आपको यहां से डिस्प्ले होगा। एंटर करोगे, आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हो, स्टॉक आइटम वाइज भी। ग्रुप वाइज देखोगे तो हमने ग्रुप क्या बनाया था, सैमसंग। एंटर करोगे तो यहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर का आ गया। आप यहां से एंटर करके यहां से भी कर सकते हो। हम ये सैमसंग को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि नेम सेम हो रहा है, तो यहां से एंटर करेंगे, सैमसंग रेफ्रिजरेटर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कंट्रोल ए करके सेव। अब हमें इजी रहेगा कि आइडेंटिफाई करना। यहां से जैसे ही हम ब्रांड का नाम डालेंगे सैमसंग रेफ्रिजरेटर, आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग सोनी का डालते हैं, सोनी टीवी, तो आपको सोनी टीवी के ऑर्डर के बारे में डिटेल एंटर करोगे तो आपको डिटेल पड़ेगा। 1 अप्रैल से पड़ा हुआ है ऑर्डर और 20,000 का है, अभी एक ही दिन और के हैं। अब क्या करते हैं, मान लो हमें इस महीने के अंत में क्या हुआ, रिसीप्ट हो गया। तो आप डेट चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप अभी देख रहे हो 1 अप्रैल, इस अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल मंथ जाता है हमारा 31, तो हम लोग यहाँ पे 31 डेट लेने के लिए राइट साइड पे आप अपने F2 शॉर्टकट की प्रेस करोगे, यहां से 31/4 एंटर करोगे, 30/4/25 एंटर करोगे, नहीं ले रहा, 31/4/25 एजुकेशन में नहीं ले रहा, हम इसे सिंपल करते हैं, अगले मंथ पे लेके चलते हैं। आप देखिए कि आपकी डेट ये चेंज हो गई है। अब मान लो हमारे सप्लायर ने हमें गुड्स दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर पे जाओगे। अभी ये परचेज वाउचर था, कंट्रोल F9 शॉर्ट की। अगर मैं डायरेक्टली परचेज में एंट्री करना चाहूं तो क्या कैसे पता लगेगा मुझे? मान लो 01 परचेज है, पार्टी नेम क्या थी, राम एंड कंपनी थी, जिस पार्टी से लिया उसी पार्टी में एंट्री होगी। परचेज एंटर करोगे, यहां से दोबारा एक बार। अब आपको ये रिसिप्ट दिख रहा है, यहाँ पे अभी डिसेबल है, आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब आपने गुड्स रिसीव कर लिया है, वाउचर पे जाओगे। अब आपको आपकी स्क्रीन में क्या है, रिसिप्ट के लिए क्या बनाते हैं, रिसिप्ट नोट। आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा आपकी स्क्रीन में, तो आप क्या करोगे,
F10 प्रेस करोगे, यहां से शो इन एक्टिव पे क्लिक करोगे, यहां से रेसिप्ट नोट फाइंड आउट करोगे। रेसिप्ट नोट ये आपको दिखा ऑल्ट F9। फर्स्ट टाइम आप एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा कि या इसको एक्टिवेट करना है, यहां से ऑल्ट F9 एंटर किया। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या हम रेसिप्ट नोट वाउचर को एक्टिवेट करें, हमने कहा यस। तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रेसिप्ट नोट का दिख रहा है। अब यहां से हम लोग 01 पार्टी का नेम राम एंड कंपनी, आपको ऑटोमेटिकली आपको ये डिस्प्ले हो रहा है। ऑर्डर पड़ा हुआ है हमारे पास परचेज ऑर्डर का, उस परचेज ऑर्डर को आपको सिलेक्ट करना है। एंड लिस्ट अगर और भी है टर्म। अब मोड ऑफ पेमेंट हमने कैसे देनी है, ऑनलाइन। यहां से रेफरेंस, अब रेफरेंस भी दे सकते हो। टर्म एंड डिलीवरी, कब तक आप डिलीवर कर रहे हो, 4-5 डेज, 1 मंथ। हम क्योंकि टैली में 1 मंथ या 15 डेज, आप पेमेंट जैसे भी करना चाहते हो वैसे ही आप डाल सकते हो। यहां से ऑनलाइन पेमेंट 15 डेज का हम टाइम ले लेते हैं। यहां से कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। कंट्रोल ए करके ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि आपका ये पूरा एक्सेप्ट हो गया है। जो आपने परचेज ऑर्डर बनाया था, ये परचेज ऑर्डर जो आपने बनाया था वो एक्सेप्ट कर लोगे। अब यहां से नरेशन में जाएंगे हम लोग, ट्रैकिंग 01, यहां से ट्रैकिंग नंबर हमारा 01 है। अभी हम जीएसटी का काम नहीं कर रहे तो नो करोगे। यहां से गुड्स रिसीव्ड, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब आप देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आपने पूरे गुड्स रिसीव कर लिए हैं। परचेज बिल पेंडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे अभी डिस्प्ले होने लग गया कि आपके कौन से परचेज बिल ऑर्डर आपने रिसीव कर लिए हैं लेकिन परचेज बिल बना नहीं है। तो आप देख रहे हैं 01 अभी ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि आपके परचेज बिल अभी तक बने नहीं। हम लोग अब क्या है परचेज बिल बनाएंगे। अब आप देखोगे कि आपके परचेज बिल में जो आपने रिसिप्ट नोट 1 में बनाया था वो ऑटोमेटिकली शो होगा। परचेज वाउचर शॉर्टकट की है F9, यहां से सिलेक्ट करोगे तो आप आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे देखोगे परचेज सिलेक्ट हो रहा है ब्लू से। यहां से 01 पार्टी का नेम है राम एंड कंपनी, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया है कि जो आपने रिसिप्ट एक्चुअल में रिसीव गुड्स कर लिए हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। यहां से एंटर करोगे, अगर और होगा तो आप और दे सकते हो। यहां से कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लोगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लोगे। आप देखोगे आपका ये परचेज इनवॉइस आपका बन गया है। आप सेम डे में भी बना सकते हो और 1-2 दिन के बाद भी बना सकते हो। यहां से एंट्री कर लोगे। अब आप देखोगे कि आपके इन्वेंट्री में भी इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। यहां से हम लोग जीएसटी को नो कर देते हैं क्योंकि हमें अभी जीएसटी पे काम नहीं करना है। यहां से ऑलवेज आपने न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना है। बिल नंबर आ गया, क्रेडिट डेट 15 दिन के अंदर हम लोग, यानी कि आपको 16 मई को पेमेंट करनी है यहाँ। और यहां से परचेज इनवॉइस 01, अब जैसे ही एंटर करोगे आपको क्या, आपके स्टॉक डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जाओगे स्टॉक समरी में, आपको रेफ्रिजरेटर ये ग्रुप है आपको डिस्प्ले हो रहे हैं।
तो आप एंटर करोगे तो आपको ये और डिस्प्ले। अब हम लोग रिपोर्ट की बात करते हैं। जब इन्वेंट्री, आप परचेज बिल पेंडिंग आपको यहाँ पे नील शो कर रहा है। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑल लेजर करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। वाउचर पे जाओगे, हम लोग सेम डे में ही पेमेंट कर रहे हैं, शॉर्टकट की है। आप अपने राइट हैंड साइड पे देखोगे, आप यहां से भी कर सकते हो, सिंपल क्लिक करोगे। अब ये क्या है आपका सिंगल मोड में, तो पेमेंट करना है हमने तो किससे करनी है, कैश से करनी है या ऑनलाइन। ऑनलाइन करनी है तो एसबीआई बैंक, उसके बाद पार्टी क्या है राम। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि कितनी पेमेंट पेंडिंग है, अभी कितनी पेमेंट पेंडिंग है। मान लो आपके अकाउंट में कितना है, 1,15,000 पेमेंट है। सपोज कीजिए हम लोग 1,15,000 की पेमेंट करते हैं अगेंस्ट, तो इसको एक्सेप्ट कर दोगे। अब बाकी हम किससे करते हैं, कैश से। तो कैश में भी हमारे पास पेमेंट कम है, तो यहां से हम राम, आपको डिस्प्ले कर रहा है 2,35,000 का अभी पेमेंट है। हम लोग कैश से भी करते हैं तो हमारे पास 44,500 की पेमेंट करने की अभी कैपेसिटी है। और यहां से कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर दोगे तो अब इसका लेजर देखोगे, पार्टी का राम, डिस्प्ले पे जाओगे, अकाउंट लेजर राम, तो आप देख सकते हो कि 1,90,500 रुपया अभी भी पेंडिंग पड़ा है, जो हमें पार्टी को पेमेंट करनी है।